So dear students, in this video lecture we will be discussing about how to write the formula of coordination compound and how to write their IUPAC. Okay, just like we had IUPAC nomenclature system in organic chemistry, we have a IUPAC system of naming in coordination compounds also. Okay, so we have to learn how to write IUPAC nomenclature or IUPAC naming system, and at the same time we have to learn how using the name we can establish the chemical formula. Okay, so both the things we will see. We will learn how to write the name and how to write the formula from a name. Okay, so in our NCERT textbook you will see that certain rules have been retained, okay, have been given there. So the rules are the central atomic, the first one is formulas for mononuclear coordination entities. That means we are trying to learn formula. Formula means we have you have been given a name. Okay, just let me write one name. Suppose the name is given tetraamine. Tetraamine aquachlorido cobalt 3 chloride. Cobalt 3 chloride. So this is a compound and we are supposed to write down the formula. Okay, so how we will write? So the steps that has been given in the NCERT book, we will go accordingly. Okay, so the central atom is listed first. So what is the central atom? Cobalt. Okay, so we will start with cobalt. We will write the central atom first. Then the ligands are then listed in alphabetical order. The placement of a ligand is the list does not depend on its charge. यानी कि लिगैंड के चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो नेम है ना, द नेम दैट इट हैज़, उसके अल्फ़ाबेट पे, जैसे एमाइन स्टार्ट्स विथ ए, देन एक्वा भी ए से ही स्टार्ट होता है, एमाइन भी ए से होता है, लेकिन ए के बाद एम है, ए के बाद क्यू है, सो ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, देन क्लोराइड. ओके, so polydentate ligand are also listed alphabetically. In case of abbreviated ligand, the first letter of the abbreviation is used to determine position of the ligand. The formula for the entire coordination entity, whether charged or not, is enclosed in square brackets. When ligands are polyatomic, their formula are enclosed in parentheses. Ligand abbreviation are also enclosed in parentheses. There should be no space between ligands and metal within coordination sphere. When the formula of a charged coordinate is to be retained, without that of counter ion, the charge of cation is balanced by the charge of the anions, whatever. So what we will do, हम ये जो रूल्स, जो हमारे गिवन रूल्स हैं, इन रूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैंने सेंट्रल एटम लिख लिया. इसका क्या लिखा हुआ है? टेट्राएमाइन. ओके, सी टेट्राएमाइन. टेट्राएमाइन मीन्स 4 amine. What is amine? This amine group is NH3, and tetraamine means 4 NH3. Aqua means water. Chlorido means Cl, and last we have chloride. See, this is chlorido and this is chloride. Okay, chlorido, chloride. So
you have to understand this, that any anion which is in the coordination sphere, inside the coordination sphere, what we do with the anion के साथ हम लास्ट में IDO लगाते हैं. ओके जैसे कि क्लोरिडो, ओके, देन नाइट्रिडो, ओके, सल्फिडो एंड सो ऑन, ओके, IDO. So and we have at last we have chloride, and we know that the central atom has a +3 oxidation state. Okay, so how many chlorides are required? यहाँ पे क्लोराइड लिखा हुआ है, लेकिन ये क्लोराइड तो मैं बाहर लिखूंगा. अब ये क्लोराइड 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हमें यहाँ कितना प्लस चार्ज होगा ये निकालना होगा. तो ये क्या है, ये +3 है, ये 0 है, ये भी 0 है, और क्लोरीन जो होता है वो -1 होता है. तो +3 और -1 जब बैलेंस होगा तो यहाँ +2 आएगा. ठीक है, इस +2 को बैलेंस करने के लिए हमें कितना क्लोराइड चाहिए? 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन चाहिए. सो Cl2. ओके, सो दिस इज टेट्राएमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ओके, मैं एक दो और एग्जांपल करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्लियर होगा ये चीज़. ठीक है, तो पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट. अब इसका फॉर्मूला लिखना है हमें. तो बताया ही था मैंने पहले, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटॉम, एक एटॉम लिखेंगे, मेटल पहले लिखेंगे. इसके बाद क्या है, ये वाला पार्ट देखिए. ठीक है, ये पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का है. तो Zn टेट्राहाइड्रोक्सी, दैट मीन्स OH. अब हमें ये पता करना है कि हमारे पास पोटेशियम कितना होगा. तो पोटेशियम कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2. ठीक है, और ये हमारे पास कितना है, 4 × -1. हाइड्रोक्सी -1 होता है, यानी -4 + 2 कितना आएगा. तो इस ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें कितना पोटेशियम चाहिए होगा, 2 पोटेशियम. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ओके, इसके बाद और क्या है, ड्राई, एक और देखता हूं, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2-diamine cobalt 3. So dichlorido bis ethane 1,2-diamine, okay, cobalt 3. ठीक है, okay.
कोबाल्ट, कोबाल्ट। डाइक्लोरिडो पहले है। और देखो जब कोई एब्रिविएटेड नेम होता है, जैसे ये इथिलीन डाइएमाइन है, ठीक है ना, इथिलीन डाइएमाइन, तो ये नेम क्या है, ये बहुत बड़ा नाम है, इथिलीन डाइएमाइन। तो ऐसे को क्या करते हैं हम, छोटा करके लिखते हैं। जैसे इथिलीन डाइएमाइन को हम लिखते हैं EN, EN यानी इथिलीन डाइएमाइन। और ये बिस का मतलब होता है 2। बिस का क्या मतलब होता है, बिस का मतलब होता है 2। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, 2 क्लोराइड का मतलब है 2 × -1, और इसका मतलब है 0, सो -2 +3 दैट विल बी प्लस चार्ज, +1 चार्ज। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब हम राइटिंग द नेम, अब हम फॉर्मूला हमारे पास गिवन होगा, और फॉर्मूला से हमें क्या करना है, हमें IUPAC नेम पे जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें बहुत सारा लिगेंड्स मिलेगा, ठीक है। तो उन लिगेंड्स का जो नेम है, ठीक है, लिगेंड्स का जो नेम है, तो वो ज़्यादातर एसिड रेडिकल्स या एनायनिक पार्ट होते हैं। तो वो एनायनिक पार्ट जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लोरीन है तो इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। थायोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है, नाइट्राइट, तो ये सारा नेम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिना इसके एस क्या होता है, सल्फाइड, सल्फेट, बाइसल्फेट, तो ये सारा नेमिंग जो है, ये सब चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। और ये चीज़ बहुत अर्ली स्टेज का चीज़ है, ठीक है। क्लास 8th 9th में जो सिंबल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे। अब IUPAC नेम के बारे में बताता हूँ। देखो IUPAC नेम में हमारे पास 2 टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है। पहला, एक मेटल होगा हमारे पास और कुछ लिगेंड्स होंगे हमारे पास, ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब हम, इसको मैं M1 कर देता हूँ, यानी 2 मेटल है, एक मेटल बाहर है, एक मेटल अंदर है हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को जब आप ब्रेक करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ लिगेंड है हमारे पास और बाहर में कोई एक एनायन है, कोई एक एनायन है, मेटल नहीं है, एनायन है, यानी क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, जिसने इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा 2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सकता है हमारे पास। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि नेमिंग स्टार्ट्स विथ कैटायनिक पार्ट, यानी दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ है, हम नेम वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी इस पॉजिटिव पार्ट को ही सबसे पहले लिखेंगे। इस केस में भी इसको, इस केस में भी इसको, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट से नेमिंग शुरू होगा, ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा हो। बाकी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, जो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा करते करते, ठीक है। पहला ये चीज़ है कि दोनों कैटायन से स्टार्ट होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू से रूल्स आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो प्लेटिनम NH3 होल 2 होल 4
Cl NO2, ठीक है। बेसिकली इसमें कोई गैप तो नहीं होता है, गैप नहीं है, ठीक है। अब इसका हमें नाम लिखना है, तो इसमें तो कोई प्लस चार्ज माइनस चार्ज पैरेंथेसिस के ऊपर है ही नहीं, तो ये यहीं से याद स्टार्ट होगा। तो जब ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या होगा, मेटल एटम, हम लिगेंड्स को पहले लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिगेंड्स को पहले लिखा जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो काम है उसमें हमेशा क्या होता है, हम लिगेंड्स को पहले लिखते हैं, मेटल को बाद में लिखते हैं, यानी लिगेंड्स को हमें पहले लिखना होगा। तो लिगेंड्स में एमाइन है, क्लोरो, नाइट्रो, मतलब एक ए से स्टार्ट हो रहा है, एक सी से स्टार्ट हो रहा है, एक एन से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, हम इसको पहले लिखेंगे। कितना है, 4 है, 4 NH3 है, तो टेट्रा एमाइन, इसको हम एमाइन लिखते हैं, ओके। टेट्रा एमाइन क्लोरिडो, सी क्लोरिडो, and this one is नाइट्रीटो, नाइट्रेट से नाइट्रीटो, ओके, नाइट्रीटो। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यहाँ से कनेक्ट हो सकता है और यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में N लिखा हुआ है ना इधर, मतलब क्या है, हमने NO2 लिखा है ना। अगर कनेक्शन ऑक्सीजन के थ्रू से होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में। जब ऑक्सीजन के थ्रू से कनेक्शन होता है तो हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं नाइट्रेट ग्रुप को। फिलहाल ऐसे लिखा हुआ है, यानी कनेक्शन जो वो नाइट्रोजन के थ्रू से है। तो एक N देंगे हम, नाइट्रेटो के बाद एक N देंगे। ये N क्या बता रहा है, ये N बता रहा है कि कनेक्शन जो है वो क्या है, कनेक्शन जो वो नाइट्रोजन के थ्रू से है, नाइट्रोजन एटॉम के थ्रू से। प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब हमें क्या करना होगा, हमने सारा लिगेंड्स के बारे में लिख दिया, हमने प्लेटिनम लिख दिया। अब हमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो सपोज ये है X, ये तो 4:0 ही है। क्लोराइड जो होता है वो -1 होता है, और ये भी जो है वो -1 है। तो यानी यहाँ से आप अगर करके देखोगे तो X जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। इससे आप देख सकते हो X 2 आएगा, ठीक है। तो जो 2 आया ना, इसे आपको ब्रैकेट में रोमन में लिखना है, रोमन 2, ओके। सो टेट्राएमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो एंड प्लेटिनम 2, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके। अब एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक है हमारा दिया हुआ है K3 Cr C2O4 होल 3 आई गेस, ये है, हाँ ये है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा नेमिंग जो है वो आपको कैटायन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, इस कॉम्प्लेक्स को अगर ब्रेक करोगे तो आप समझ जाओगे कि इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, ठीक है। तो स्टार्ट इसी से होगा, इसी से नेम स्टार्ट होगा, जो कैटायनिक पार्ट है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम हमने लिख दिया, कैटायनिक पार्ट लिख दिया। अब एनायनिक पार्ट क्या है, एनायनिक पार्ट है ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना नेगेटिव आएगा वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीज़ों को जब हम लिखते हैं तो मैंने पहले ही बताया हमने क्या, पहले क्या लिखना है हमें, तो पहले हमें लिखना है, क्या लिखना है, तो पहले हमें लिखना है लिगेंड्स के बारे में। मेटल एटॉम हम बाद में लिखेंगे, लिगेंड्स के बारे में हम पहले लिखेंगे, ठीक है।
तो ऑक्सोलेट है, ऑक्सोलेटो, लास्ट में एटो, ऑक्सोलेट को ऑक्सोलेटो, नाइट्रेट को नाइट्रीटो, क्लोराइड को क्लोरिडो, ओके, दिस टाइप। सो ट्राई ऑक्सोलेटो, ठीक है। अब आप ये चीज समझो, दो सिचुएशन समझना। दो सिचुएशन को समझना, एक इस पे माइनस चार्ज हो सकता है और दूसरा इसके ऊपर या तो प्लस या फिर कोई चार्ज नहीं। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, यानी ऐसा है समझ लो, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल और पॉजिटिव जब होता है तो डायरेक्टली नेम ऑफ मेटल विथ ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन। जैसे कि मान लो मेटल अगर आयरन है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आयरन लिख देंगे। निकल है, निकल लिख देंगे। कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। लेकिन ये तब होगा जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव या न्यूट्रल है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो मेटल का जो नेम है उसके साथ में हमें ATE लगाना होगा, ATE। जैसे कि मान लो जिंक है, मान लो जिंक है तो जिंक के साथ में ATE यानी जिंकेट, ठीक है। निकेल है तो निकेल के साथ में हम ATE लगाएंगे, निकेलेट, कोबाल्टेट, क्रोमेट, ठीक है। या फिर आयरन है तो फेरेट। और जब भी नेगेटिव होता है तो हमेशा हम रोमन नेम का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको हम आयरनेट नहीं लिखेंगे, नॉट आयरनेट, क्योंकि जो रोमन नेम है आयरन का वो क्या है, फेरम, फेरम है। आयरन का रोमन नेम, ग्रीक नेम सॉरी वो फेरम होता है। तो फेरम से क्या आएगा, फेरेट, ओके। सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, अर्जेंटेनम, सो अर्जेंटेट। गोल्ड, ऑरम यानी ऑरेट, ठीक है। गोल्डेट या सिल्वरेट नहीं होगा, अर्जेंटेट या ऑरेट होगा, ओके, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। तो इस बार ये क्या हो जाएगा, इस बार ये क्रोमियम नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्रोमेट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, x 3 × +1 3 × -2 = 0, क्योंकि पूरे कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि x जो है वो 3 आएगा। So this is the name, potassium trioxylato chromate 3, okay। और देखते हैं एक दो, तो CO Cl2 En2 और बाहर है Cl। तो ऑब्वियस सा बात है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमेशा कैटायन से नाम शुरू करना है। तो कैटायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, तो हम इसका नाम लिखेंगे पहले। लेकिन इसका नाम लिखते वक्त हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ होता है उसमें हम लिगेंड्स के बारे में पहले लिखते हैं। तो एक C से है और एक E से है, तो C वाला पहले आएगा, तो डाई क्लोरिडो, ठीक है। अब देखो इसका जो नाम है, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इसका नाम है एथेन 1,3 आई गेस 1,3 और 1,2 1,2
डायमाइन, 1,2 डायमाइन, ये इसका नाम है EN का। अब इसमें देखो, इस कंपाउंड में पहले से ही एक डाई है, पहले से ही एक डाई अंदर है, डायमाइन। तो हम बाहर में डाई इथिलीन 1,2 डायमाइन नहीं लिख सकते, ठीक है। जब पहले से ही आपका किसी कंपाउंड में, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ आपको। When names of ligand include numerical prefixes, यानी अगर लिगेंड के अंदर पहले से ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, हम डाई, ट्राई इनका इस्तेमाल नहीं करते। तब हम क्या करते हैं, डाई के जगह हम लिखते हैं बिस, ट्राई के जगह ट्रिस, टेट्रा के जगह टेट्रा किस, ओके, पेंटा किस एंड ऑल, ओके, टेट्रा किस, पेंटा किस एंड सो ऑन, ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 इथिलीन डायमाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, बिस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमाइन, और इसमें देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं होगा, सिंपल कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट तो सेंट्रल एटॉम है, तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर। ये X हो गया, ये इतना हो गया, 0 हो गया। इस क्लोरीन की वजह से क्या आएगा, -1 आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिलेगा X इक्वल टू 3। सो कोबाल्ट 3। अब बाहर का नेगेटिव पार्ट लिखना है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है, तो क्लोराइड, ठीक है। तो मैंने आपको एक न्यूट्रल, एक कैटायनिक और एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में दिखाया। अब इसमें क्या है, इससे ज़्यादा रूल्स हैं नहीं यहाँ पे। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारा एग्जाम्पल है, इंटेक्स्ट है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स रहे इस पार्ट से, IUPAC नेमिंग वाले पार्ट से, या इसके पहले जो मैंने बेसिक्स जो डेफिनेशंस करवाए, तो फील फ्री टू आस्क, ओके, थैंक यू।